we talked about single phase fully controlled rectifier fed from fed DC motor. So in that case, what we had was that we have the circuit in which the DC motor was considered to be an RLE load. So R was due to resistance, RA was due to the resistance of the armature, LA was due to the inductance of the armature, and E was due to the back EMF. RA और E की बात तो आपको ठीक है पता है, because it happens in case of normal DC motors also. But when we talk about LA, in case of a DC circuit, when we talk about LA, in that case, what happens is that mm, because we are feeding it from a rectifier, and rectifier's input is AC, and AC oscillates 100 times in a second for a 50 hertz supply. So what actually happens is that there is always a sort of a transient condition or a changing condition. Not you can say a very transient one. You have a changing condition. Obviously, it is called transient, and it is bounded by limits. That means that the value increases. जो आपके पास rectifier की output DC होती है, and if it is a controlled one even, in that case, what happens? It fires at alpha, and it starts conducting. So whatever waveform is over here is being conducted to the load. So or the terminals at these. So what happens is that say you fire it at alpha. So whatever input is at and after alpha is replicated at the output. So you have this, and on the next half cycle, on the negative half cycle, you again have the inverted form of it, and again it is replicated. Okay. So what you see is that even though it is a unipolar supply or a DC supply, but it is not of a constant value. So whenever you apply a DC to any DC motor or any load that has got the properties of inductance, in that case what happens is that it behaves as an inductor, and the current actually lags the voltage. ठीक है, so when it lags the voltage, so what happens is that you will have a current that build ups gradually and even decays gradually even after the voltage has set to zero. यानी यहाँ पे जब आपके इन टर्मिनल्स पे जब ये वोल्टेज जो है आपके पास जीरो भी हो जाएगी, even then there will be a current through this. That will happen due to the inductance in the circuit. So that inductance is actually depends upon the or is actually the inductance that is exhibited by the armature winding. Okay, so we have two modes of conduction in this. The very first one is the continuous conduction mode, or say first consider discontinuous conduction mode. For simple, in that case what happens is that as the in this circuit, as the thyristors are fired at alpha, यानी T1 and T3, ठीक है, तो ये आपने टाइमिंग डायग्राम भी इसमें बना के देखा, ठीक है, इसमें E का भी रोल आएगा, वो हम बताएंगे अभी. तो what happens in this case is that when T1 and T3 are fired at alpha, so the voltage instantly builds up. जो भी आपको पास दिख रही है उस कंडक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तो जो भी इनपुट वोल्टेज का रिप्लिका है उस टाइम पे at that particular instant time will start appearing across the terminals of the output of your converter. So what will happen at the point कि आपके पास वोल्टेज तो वो आ गई, जो उस तरफ था, जो सिनोसाइडल वेवफॉर्म का जो पार्ट था वो एग्जैक्टली वहीं रिफ्लेक्ट होने लगेगा as soon as आपके पास अल्फा जो है वो फायर हो जाता है, ठीक है. एंड नाउ बिकॉज द वोल्टेज appears across these two terminals now, so the current will start flowing because of this potential difference, and this current will not follow the voltage waveform because the circuit is inductive in nature.
So that is why you have a current build up like this. It gradually builds up like this and then reaches to a maximum value. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी और इसकी दोनों की अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल के या टाइम्स पे होगी. ठीक है, बिकॉज इट लैग्स. पहले वोल्टेज आएगी मैक्सिमम वैल्यू फिर करंट आएगी मैक्सिमम वैल्यू. तो आई इज लैगिंग इन दैट केस एंड इवन आफ्टर द voltage goes to zero, then you have the current even traveling through that circuit and it goes to zero later. ठीक है, this angle is known as beta. ठीक है, extinction angle कहलाता है आपका. ठीक है, so now when the next cycle starts, in that case what happens is that you have this uh, next build up as starting from pi plus alpha because this is a symmetrical circuit. Okay, so if it is a symmetrical circuit, in that case what happens is that जो आपके पास एक सेट ऑफ थायरिस्टर्स फायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट सेट ऑफ थायरिस्टर्स भी उसी सिमिलैरिटी से फायर होंगे और उसी उससे होंगे. तो ये अगर अल्फा है तो नेक्स्ट साइकिल जो है वो पाई प्लस अल्फा से फायर होगी. ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस बन सकती हैं दैट देयर मे बी ए करंट एक्सटेंशन फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल बिफोर दैट फायरिंग और देयर मे बी ए करंट एक्सटेंशन आफ्टर दैट फायरिंग. ठीक है, तो यानी बीटा जो है वो ग्रेटर देन हो पाई प्लस अल्फा से यानी बाद में होगा. तो द नेक्स्ट सेट ऑफ थायरिस्टर्स आर फायर्ड फर्स्ट एंड देन the current extinguishes or beta exists and in the other part is that beta is जैसे हमने यहाँ पे दिख रहा है इस वाले केस में था कि आपके पास अल्फा से पहले ये जीरो नहीं हो पाई करंट और इससे पहले ये फायर हो गया यहाँ पे. यानी ये अगर आपके पास बीटा होता तो यहाँ पाई प्लस अल्फा के बाद कहीं पे होता. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट आपके पास जीरो हो गई बट स्टिल ये चीज़ फायर होके ये वाली वोल्टेज नहीं वो कर पाई थी. Because you have E being put into the circuit over here, so that is why, and E is in opposite direction with the polarity और से in the KVL अगर आप देखेंगे तो उसी उसमें drop में मिलेगा आपको. So what actually happens, first it has to overcome the value of E then after that this starts. तो इसमें जो है आपके पास इतने टाइम के लिए E जो है वो बना हुआ रहेगा and it starts after that. So what the point of concern over here is this part that either beta is greater than pi plus alpha or beta is less than pi plus alpha. So if this happens, that means जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बीटा पहले extinguish होगी उसके बाद फायर हुआ है pi plus alpha से. In that case, what happens is that you have the current being discontinued for this much of time. And there is no IA for this much of time between beta to pi plus alpha. Okay, so this is known as discontinuous conduction mode and this actually depends upon the inductance of the circuit. The larger the value of the inductance, the more time for which your current is going to extinguish, say lately. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास यहाँ पे L होगा या LA होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके पास बीटा आगे तक जाएगा and the chances of getting a discontinuous current in the circuit will be lesser because you require different voltages of to be set at these terminals. यानी आपके पास जो आर्मेचर टर्मिनल्स हैं जब आप आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं then you can have a requirement of going to low values of output voltage or input voltage to the motor. In that case you will require larger values of alpha in this circuit क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा आपके पास बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा आपके पास वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज कम होती चली जाती है. तो अगर एक बार हमारे पास ये चीज़ बन जाती है and we go on increasing the values of alpha for lower values of output voltage. So what happens in that case is that point of extinction remains same. So at the lower values of input voltage or higher values of alpha, lower values of input voltage to the DC motor or higher values of alpha in this circuit, दोनों ही की चीज़ है.
the chances of getting discontinuous conduction increases. ठीक है, बीटा तो वहीं रहा, अल्फा पाई प्लस अल्फा खिसक जाएगा आगे towards the right side. So if it extends over the right side, what happens? Definitely there will be a point of a region for or some time for which the current would be discontinuous. Whenever you have a discontinuous current, in that case, because you are running a motor, there are certain obvious problems that the current has to the torque depends upon the current. ठीक है, तो जो output becomes jerky a bit. ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसे हम आगे चल के एक बार और बताएंगे क्या चीज़ होती है. बट डिसकंटिन्यूस करंट इज जनरली नेवर डिजायर्ड. ठीक है, क्योंकि एक बार सारी चीज़ें जीरो हो जाएं फिर वो बिल्डअप हों तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, ऑन द अदर साइड if you have large values of L over here, then you'll be having larger values of beta, and the chances of having a discontinuous conduction actually goes out. ठीक है, कि आपके पास करंट आई, ठीक है, बढ़ना शुरू हुई, हमने पिछले साइकिल से ले लिया है. पहली साइकिल में तो ये है कि यहाँ से बढ़ना शुरू होगी जीरो से, it increases to a value, then goes to start going decreasing, and when it has not reached to zero, the next cycle is fired, or the next pair of thyristor is fired, and it again starts increasing. So what you see over here is that the current does not touch this zero line. So the current becomes or is called a continuous conduction ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, जो उसका टाइमिंग डायग्राम है तो वो भी अगर आप देखेंगे करंट के हिसाब से तो यू डोंट हैव एनी डिसकंटिन्यूअस कनेक्शन. इसके बीच में जो है वो आपको फॉर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम यू हैव ए डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन जिसमें हैज्ड पोर्शन आपको ये दिखा हुआ है. ठीक है, सो व्हेन वी गो फॉर द एनालिसिस, एक चीज़ में अब हम दोबारा इसकी उसमें चलते हैं. यहाँ पे वापस आते हैं. सबसे पहले whatever is the output of this converter circuit is fed into the machine. Okay, so remember this. First the output of this has to be evaluated, and whatever is the output in terms of voltage, because voltage is applied to the armature circuit. So whatever is the output of this circuit is fed into the motor, and motor output varies as the input varies. Input, that is actually the output of the converter. यानी कन्वर्टर से जो आउटपुट निकलेगा वो मोटर का इनपुट बनेगा, और उस इनपुट पे जो है वो आपके पास उसका मोटर का आउटपुट डिपेंड करेगा. तो यानी हमारी जो स्पीड टॉर्क इक्वेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं इनपुट वोल्टेज पे, जो हमने पीछे भी डिराइव किया था. तो अगर वो वाली इनपुट वोल्टेज इस कन्वर्टर के थ्रू दी जाती है, इस रेक्टिफायर के थ्रू दी जाती है, तो उस टर्म की जगह जो है वो आपके पास जो वोल्टेज टर्म था V, उसकी जगह जो है आप इसका आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेज की. ठीक है, तो ये चीज़ अभी आएगी नेक्स्ट इसी उसमें फॉलोइंग पेजेस पे. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव इज दैट वी फर्स्ट विल एनालाइज फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. we'll be having two portions of conduction. पहला जिसमें करंट है और दूसरा जिसमें करंट नहीं है. ठीक है, तो टोटल, और उसके बाद ये साइकिल हर साइकिल पर रिपीट होती है. यानी अगर आप डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है और वही कंडीशंस बनी रहती हैं इनपुट वोल्टेज की, अल्फा की और इंडक्टेंस की, तो ये साइकिल्स जो हैं वो हर हाफ साइकिल जो आपके पास ये AC की है उस पर रिपीट होती है. दैट मीन्स you will have a very similar operation all around. ठीक है, तो ये सारी तो आपके पास नॉर्मल बातें हैं कि T1 T2 कंडक्ट कर रहा है, फिर ये 2 पाई, ये सारी चीज़ें बता दी गई. ठीक है, नाउ वी कम टू डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन जो हमने ऊपर बात करी थी. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में ड्यूटी इंटरवल कहलाता है, इन विच यू हैव द वैल्यू ऑफ करंट और द सोर्स टू बी कनेक्टेड टू द लोड or the motor. This is from alpha to beta. In this case you always remember that beta is less than pi plus alpha, तभी वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन बनेगा. ठीक है, तो ड्यूटी इंटरवल रहा अल्फा से लेके यहाँ इस ड्यूरेशन में आपके पास करंट रहेगी, और वोल्टेज जो है वो पूरी जो आर्मेचर वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी, बिकॉज द स्विच आर ऑन इन दोज कंडीशंस.
Then the second part of it is that you have a zero current interval. The current extinguishes at beta, तभी ये जीरो करंट कहलाता है. और कहाँ तक करंट नहीं आएगी जब तक वो दोबारा फायर नहीं हो जाएगा. दैट मीन्स पाई प्लस अल्फा. इट क्लियरली शोज दैट बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा. ठीक है. In this case, IA is equal to 0 and the armature voltage or the voltage across the terminals is actually equal to E, जो आपके पास बैक EMF है. ठीक है. ऑब्वियसली ये EMF कम होता चला जाएगा विद टाइम, बिकॉज अगर हम इसे कोई सर्कुलेटिंग पाथ देते हैं तो यू विल बी हैविंग एन IARA ड्रॉप. ठीक है. तो ये वोल्टेज भी कम होगी. तो ड्राइव ऑपरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, आपने सिंपल दोनों केसेस में जो है वो KVL लिखा. KVL इसमें IARA LDIA by dt प्लस E इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t. ठीक है. IARA LDIA by dt प्लस E इज इक्वल टू आपके पास VM sin ओमेगा t, जो ये वाला है. ठीक है. एंड इन केस ऑफ दिस इज द केस फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन, जब आपके पास पूरा उसमें कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा टू बीटा. And when the current is extinguished at beta, in that case you can come to the second operation, that is the zero current interval in which VA is equal to E. ठीक है. and the current goes to zero. ठीक है. because वो आपके पास और इसमें बीटा से लेके ये चलेगा जब तक नेक्स्ट फायरिंग नहीं हो जाएगी आपके पास. ठीक है. तो देन यू हैव ये आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आई आपके पास IA के टर्म्स में. ठीक है. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. DIA बाई dt है और IA है इसमें. ठीक है. तो इसमें जो है वो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, वी हैव टू कंपोनेंट्स. ठीक है. एक आपके पास ट्रांजिएंट कंपोनेंट आता है और एक आपके पास जो है वो बैक EMF की वजह से आता है. and then you directly write the solution of it, IA ओमेगा t. इस वाला 5.72 जो आपको दिख रही है, इसका हमने सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने जितने भी पढ़े होंगे. मैथमेटिक्स में बहुत सारे पढ़ लिए हैं, तो उसका तो दोबारा नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता. तो you can solve this differential equation 5.72 using the initial conditions or the boundary conditions, and you have a solution like this. ठीक है. for this अल्फा से लेके बीटा तक. ठीक है. Z आपके पास ऑब्वियस है, फाई भी इससे ऑब्वियस निकल आता है, एंड यू सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस. ठीक है. एट लास्ट जो है वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, और इसमें आर्मेचर ड्रॉप इंक्लूड करने के बाद ड्यू टू द DC कंपोनेंट जो है वो ये चीज़ आ जाती है. नाउ वी हैव द आउटपुट voltage or the armature voltage to be put in this form. ये इस फॉर्म में आएगी आपके पास कि अल्फा से लेके बीटा तक VM sin ओमेगा t था. ठीक है. क्योंकि इतनी देर ये कंडक्ट कर रहा था, और बाकी पोर्शन जो था बीटा टू से पाई प्लस अल्फा में E था, बैक EMF. ठीक है. तो दिस इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस. जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक किसी भी उसका, तो पूरे वैल्यूज को या पूरे टाइम में, जैसे T1 से T2, T2 से T3, तो दिस इज एक्चुअली T1 से T2 एंड दिस इज T2 से T3 तक. ठीक है. तो ये हमारे पास पूरी साइकिल हो जाती है इंटीग्रेटेड फॉर 1 बाई पाई. ये पाई क्या है? पाई इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस साइकिल, क्योंकि जो AC में है, AC में एक साइकिल होती है 2 पाई की, और ये रिपीट होता है आफ्टर पाई, बिकॉज फुल वेव रेक्टिफायर है. तो एक AC की साइकिल में आपको दो साइकिल्स ऑफ DC मिलती हैं. ठीक है. तो इसलिए ये जो 1 बाई टी जो बनेगा, तो ये 1 बाई पाई बनेगा, और ये T1 से T2, T1 आपके पास जहाँ से फायरिंग हुई, जहाँ से एक्सटेंशन हुआ, वहाँ तक आपके पास करंट रही, दैट इज कंटिन्यूस करंट. और उसके बाद देन यू हैव ए जीरो करंट इन विच द वोल्टेज वाज E. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होते हुए आप फिर इस पे पहुँच जाते हैं. नाउ व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, ये जो आपने VA निकाला, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. ऊपर वाली तो सारी चीज़ें हैं कि जो IA की वैल्यू निकालते हैं, ये करते हैं, ये लेटर स्टेजेस में इस्तेमाल होती हैं, मगर आपकी स्टेज पर नहीं होती. यहाँ तक आपकी स्टेज पर काफ़ी रहता है, बट स्टिल यू हैव फर्दर दिस द वैल्यूज ऑफ K1 और ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं आप इसमें, और एग्जैक्ट इक्वेशन में पहुँच जाते हैं इस वाली पे. ठीक. इट्स ओके, इट्स गुड कि अगर आप ये निकालें तो.
बट द मेन थिंग इज दैट VA, ये VA कौन सा VA है? ये VA है जो इस मोटर में जा रहा है, ठीक है। एंड दिस विल डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन। इस मशीन की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड टी, इट विल बी गवर्निंग दैट वन। तो जो हमारे पास जो उसकी इक्वेशन थी, स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप थी, क्या नाम है, एक DC मोटर की जो हमने डराइव करी थी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड टी एंड वी, यहाँ पे आपके पास वी था जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी। लेट मी शो इट। ये जो आपने एक जनरल इक्वेशन उसकी डराइव करी थी, स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप, ये वाली 5.5 जो है, ठीक है, इसमें ये V है। ये V क्या है? ये V है इस मोटर का इनपुट। ये जो आपके पास मोटर है इसका इनपुट है V, ठीक है। तो व्हेन यू रिप्लेस दिस V बाई द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर, V क्या बनी यहाँ पे? ये जो आउटपुट वोल्टेज आपने कन्वर्टर की जो निकल रही है, एंड यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ V इन दिस इक्वेशन, यानी इस V की जगह जो है आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपने ये निकाला है, you will yield to the reach to the speed torque characteristics of a controlled rectified fed DC motor, जिसमें आपके पास पैरामीटर्स हैं VM, that is the maximum value of AC voltage, alpha, cos of alpha obviously, alpha के टर्म्स में alpha is the firing angle, beta is the extinction angle, यहाँ पे भी बीटा और अल्फा है, यहाँ पे भी बीटा अल्फा है, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले थी, ठीक है ना। And you can very well see over here is that there is a boundary condition between continuous and discontinuous when beta is equal to pi plus alpha। जैसे जैसे एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ता जाता है या फायरिंग एंगल आप कम करते चले जाएं, तो क्या होगा इस सर्किट में कि दोनों एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एक जस्ट बाउंड्री बनेगी दोनों के बीच में। ये अपने गैप था दोनों के बीच में, तो अगर या तो बीटा